Hello and welcome to all. Myself Neha, and today we are going to discuss the question answers of chapter number 1 for class 8. And the name of the chapter is Desiree's Baby. तो chapter का नाम आपको पता चल गया है. It's about Desiree, it's about her baby, and I hope you have seen the video lectures and you have also understand the basic concept of that chapter. So let's proceed with the question answers. So we are discussing get going, हम discuss कर रहे हैं get going को, and the first question we are having is let us find the answer from this story. हमें on the basis of story we try to sort them out. हम सारे question answers को sort out करने की कोशिश करेंगे. The first question is why was Madame Valmont amused at the thought of Desiree and her baby? क्वेश्चन का मतलब ये है मैडम वॉलमोंडे. सो हु इज मैडम वॉलमोंडे? मैडम वॉलमोंडे इज द मदर ऑफ डिजेरी. तो डिजेरी की मदर जो है वो मैडम वॉलमोंडे है एंड शी वाज क्वाइट अम्यूज्ड. वो बहुत खुश थी उस समय और अपने आप ही मुस्कुरा रही थी अबाउट बिकॉज शी वाज थिंकिंग अबाउट हर डॉटर डिजेरी एंड शी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट हर बेबी. डिजेरी के बेबी के बारे में सोचकर शी वाज क्वाइट अम्यूज्ड एट दैट मोमेंट. Because why she was amused? Because Desiree was herself a baby. कभी कल ही की बात थी कि yesterday तक ही Desiree जो है खुद एक बच्ची थी and now she become a mother of a baby herself. और आज जो है Desiree खुद भी एक बच्चे की माँ है और उसका बेबी हो गया. तो that thought make her amused. तो ये जो thought था, ये जो thinking या idea था, that make her amused. तो इसी को सोचकर she was quite amused when she was driving toward the library. तो जब वो library की तरफ मूव कर रही हैं अपनी कार में, she was quite happy, she was quite amused. Amused का मतलब होता है मुस्कुराना, खुश होना. She was quite amused at the thought of Desiree being a mother of a child. तो डिजायरी जो आज खुद एक मदर है, इस चीज को सोचकर मैडम वॉलमोंडे जो है काफी खुश हैं बिकॉज yesterday she was herself a child और आज उसके पास खुद एक छोटा बेबी है. तो that thought make her amused. तो ये था आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Why did Madame Valmont shudder at the sight of Loebre? What is the meaning of shudder? Before we understand the meaning of that question, let's understand the meaning of shudder. Shudder का मतलब होता है shocked होना. Shock. When you become shocked at something is called shudder. तो जब आप किसी चीज को लेकर शॉक हो जाते हो, that is called shudder. तो shudder का synonyms हो गया shocked. So why did Madame Valmont shudder at the sight of Loebre? मैडम वॉलमोंडे ने जैसे ही लॉएब्री. अब व्हाट इज लॉएब्री? लॉएब्री कौन सी जगह का नाम है? लॉएब्री उस प्लेस का नाम है जहां पर डिजेरी और उसके हस्बैंड जो हैं वो रहते हैं. उस जगह का नाम है लॉएब्री. उस प्लेस का नाम है लॉएब्री. और लॉएब्री एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाइट हाउस. लॉएब्री अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है और इस फ्रेंच वर्ड का मतलब होता है व्हाइट हाउस, एक सफेद. क्योंकि ये चैप्टर जो है इट्स चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ रेशिज्म. रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उस चैप्टर के उसी फीलिंग को लेकर ये चैप्टर आपका बेस्ड है. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ रेशिज्म एंड दैट इज व्हाई द हाउस in which Desiree and her husband Armand Aubigny lived is called Loebre, which mean White House. So, मैडम अब दोबारा अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं. Why did Madame Valmont shudder at the sight of Loebre? So, when Madame Valmont, जो Desiree की मदर है, when she reached to the house, when she reached to the Loebre, she was just feeling shudder. She was just feeling shocked. So why she was shocked? वो क्यों इतनी shocked हैं जो भी लॉएब्री का सीन है उसे देखकर? तो इसका रीजन आप लिखेंगे लॉएब्री was a quiet place. लॉएब्री जो था वो बहुत क्वाइट प्लेस था. और वो क्यों क्वाइट था? एक तो वो वहां बहुत एक अजीब सी शांति थी एंड विद द एब्सेंस ऑफ हर ओल्ड मिस्ट्रेस. क्योंकि
when we read that chapter we come to know that जो अमन ऑबिग्नी की मदर थे, she was died in France, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी when she live in France, और the Loabry is completely feeling the absence of her old mistress. तो ये घर हमेशा अपनी ओल्ड मिस्ट्रेस की कमी को फील करता था, महसूस करता था. दैट इज वाई यहाँ एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा क्वाइटनेस या खालीपन या हॉलोनेस थी. सो दैट इज वाई मैडम वॉलमोंडे शॉक्ड और शडर एट द साइट ऑफ Loabry. So that is why she becomes shocked when she reached to the Loabry, when she feel the sadness, when she feel the quietness, and she also feel the absence of her old mistress. मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन. जो अमन की मदर थी उनकी एब्सेंस जो है वो मैडम वॉलमोंडे को फील हुई थी वहां पर. दैट इज वाई शी वॉज क्वाइट शडर इन दैट moment. So this is the answer of question number 2. Now move to the question number 3. That is, why was Madame Valmont startled on seeing the baby? अब फिर से हमारे पास एक वर्ड आ गया है startled. So what is the meaning of startled? Is surprised. Startled का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना, हैरान होना. So startled means surprise. अब हम क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे. Why was Madame Valmont? Madame Valmont जो डिज़ेरी की मदर है. Why was Madame Valmont startled? Startled का मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना. Why was she surprised or startled on seeing the baby? तो जब उन्होंने डिज़ेरी की बेबी को देखा, she was just startled, she was just surprised. So why she was surprised and how her reaction different from the way Desiree talk about the baby. एक तो पहले वो सरप्राइज हो गई, और why, how her reaction. reaction का मतलब क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया. जैसा हम किसी चीज को देखकर रिएक्शन लेते हैं, जैसा हमारा प्रतिक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. तो मैडम वॉलमोंटे का जो रिएक्शन था वो कैसे डिफरेंट था डिज़ेरी के रिएक्शन से. डिज़ेरी वाज वेरी हैप्पी विद हर बेबी. सो इन दोनों के रिएक्शन का, इन दोनों का जो प्रतिक्रिया थी उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है. किन दोनों के बीच में? डिज़ेरी का रिएक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ मिसेस वॉलमोंटे. किसके लिए बताना है? डिज़ेरी के बेबी के लिए. सो ये क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. Why was Madame Valmont startled on seeing the baby? पहले आपको आंसर देना है कि why was Mrs. Valmont startled or shocked when she happened to see the baby? Because the baby's color was quite black. The baby was slightly negroish. उसका जो कलर था बेबी का, the color of the baby was slightly blackish. Slightly का मतलब थोड़ा सा, blackish मतलब काले रंग में था. तो the color of the baby is slightly black, and Mrs. Valmont was quite surprised to see that baby because Desiree was having white color. Desiree का color जो था वो white complexion था. Her husband is also white. So how the baby could be like so black? So she was surprised to see the baby when she find out that the baby was slightly black. तो जब उन्होंने बेबी को देखा तो she was not happy. जब मैडम वॉलमोंटे ने बेबी को देखा तो she was not happy. She was also surprised because the baby was slightly black. तो इसका रीजन क्या है कि बेबी जो था उसका कलर slightly black था. That is why she was surprised. अब इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. How was her reaction different from the way Desiree talk about the baby? अब जब when मैडम वॉलमोंटे happened to see the baby, जब मैडम वॉलमोंटे ने बेबी को देखा, she was quite surprised and then she gave a reaction. She was quite surprised. She was narrowly observed the baby. She was quite surprised for point number 1. Then she started observing the baby. उसके बाद मिसेस वॉलमोंटे ने या मैडम वॉलमोंटे ने उस बेबी को ऑब्जर्व किया, उसको देखना शुरू किया. She then keep the baby toward the window. She then keep the baby toward the sunlight. उसके बाद वो sunlight में ले जाते हैं बेबी को. Then she narrowly observed the baby. उसके बाद उन्होंने बेबी को अच्छे से ऑब्जर्व किया. Then she compared the baby with the
जेड्रिन, वहां पर जो एक लेडी जेड्रिन खड़ी हुई है, शी वॉज ऑल्सो अ निग्रो. देन मैडम वॉलमोंडे स्टार्टेड कंपेयरिंग बेबी विद जेड्रिन. फिर उस निग्रो स्लेव के साथ जिसका नाम जेड्रिन है, मैडम वॉलमोंडे जो है उसको कंपेयर करने लग जाती हैं, क्योंकि उस बेबी के कलर को वो सिमिलैरिटी मिल रही होती है जेड्रिन के कलर से. सो दैट इज व्हाई शी वाज नॉट हैप्पी. बट ऑन द अदर हैंड डिजरी वाज द मदर ऑफ दैट बेबी. ऑन द अदर हैंड जब हम डिजरी का रिएक्शन देखते हैं तो डिजरी जो है वो ऑब्वियसली उस बच्चे की मदर है. शी वॉज क्वाइट हैप्पी टू हैव दैट बेबी. डिजरी जो है उस बेबी से काफी खुश है. शी वॉज अप्रिशिएटिंग हर बॉडी पार्ट्स. वो उसकी फिंगर्स के बारे में बात कर रही है. शी वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट बेबी इन अ वेरी अफेक्शनेट मैनर. वो उस बच्चे के लिए बहुत अफेक्शनेट है, उसके मन में बहुत प्यार है. सो इस तरीके से वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोथ लेडी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इन दोनों लेडीज का पॉइंट ऑफ व्यू, इनका रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट था. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑल इट्स एक्सप्लेनेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. What made Desiree believe that Armand was very happy about the baby? What made Desiree believe that Armand was very happy about the baby? Desiree को ये विश्वास कैसे हुआ? बिलीव का मतलब होता है ट्रस्ट होना, विश्वास होना. तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने डिजेरी के मन में ये बिलीव, ये विश्वास डाल दिया कि आमंड जो था, he is quite satisfied, he is quite happy to have that baby. कि उस बच्चे को पाकर, आमंड कौन है? His husband. His husband is Armand Aubigny. नाम आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं. किसी स्टोरी को समझने का पहला स्टेप है that we learn the name of character. We also learn the name of characters. We also just understand their characteristics. हम उनके अंदर क्या क्या characteristics हैं वो समझे. तो डिजरी की अगर हम बात करते हैं, she is a very lovable, simple woman. Armand Aubigny is very cruel. तो अब यहाँ पर क्या है? What made Desiree believe that Armand was very happy about the baby? तो वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसे डिजेरी को हमेशा ये लगता था कि उसका हस्बैंड जो है आमंड ऑबिग्नी इज क्वाइट हैप्पी विद दैट बेबी. इसका आप एक्सप्लेनेशन देंगे. डिजेरी फील दैट आमंड वाज हैप्पी टू हैव अ बेबी बॉय. क्योंकि वो बेटा था इसीलिए आमंड हैप्पी था. और आमंड की मेंटेलिटी क्या थी कि दैट अ बॉय ब्रिंग ग्रेस टुवर्ड द फैमिली. जो बॉय है वो एक ग्रेस, एक जो है एक रुतबा लाता है फैमिली के लिए. तो ही ऑलवेज बिलीव दैट अ बेबी बॉय वुड ब्रिंग हैप्पीनेस, वुड ब्रिंग रिस्पेक्ट एंड ग्रेस टुवर्ड द फैमिली. दैट इज व्हाई ही वाज क्वाइट हैप्पी टू हैव दैट बेबी बॉय. और डिजरी को भी यही लगता था कि आमंड एक बेटे को पाकर खुश है, क्योंकि वो बेटा डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा बहुत सारे रिस्पेक्ट को, बहुत सारी ग्रेस को, और उसके नाम को वो that the boy bring the name of Aubigny toward the grace. कि जो Aubigny फैमिली की जो इज्जत है उसको वो बच्चा आगे बढ़ाएगा. That is why Armand Aubigny was quite happy to have a baby boy. तो ये आंसर था आपका आंसर नंबर 4. तो मैंने आपको बताया था कि इस लेसन की थीम है रेशिज्म, रंग भेद, और इसकी दूसरी थीम है फेमिनिज्म. ये लेसन जो है, दिस लेसन इज ऑल्सो टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन. तो ये स्त्री या पुरुष या लड़का या लड़की के भेदभाव की भी बात करता है. दिस चैप्टर इज क्वाइट अ डीप चैप्टर. देयर इज लॉट्स टू अंडरस्टैंड इन दैट चैप्टर. ओके, लेसन नंबर 5. What were the incidents that made Desiree realize that things were beginning to change? What were the incidents that made Desiree realize that things were beginning to change? क्वेश्चन समझेंगे पहले ध्यान से. इंसिडेंट्स का मतलब होता है वाक्य, यानी कि जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट्स. तो धीरे धीरे इनिशियली डिजरी को ये लगता था कि दैट इज हस्बैंड इज क्वाइट हैप्पी टू हैव दैट बेबी बॉय. बट धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे. देन शी रियलाइज का मतलब होता है टू, she come to know, she come to know, she come to realize
तो इस तरीके से अब उसको ये लगने लगा, शी कम टू नो दैट थिंग्स वर बिगिनिंग टू चेंज। अब जो फैमिली बहुत हैप्पी थी, एक लविंग हस्बैंड था एंड ही इज क्वाइट हैप्पी टू हैव दैट बेबी बॉय, अब उसको ये लगने लगा कि डिजरी को ये लगने लगा था कि अब चीजें जो हैं चेंज हो रही हैं। व्हाई शी वाज फीलिंग सो। तो इसके लिए भी 3-4 लाइनें जो है वो एग्जैक्टली आपके लेसन में बहुत जो है क्लियरली एक्सप्लेन की गई हैं। वो कौन सी चीजें थी? फर्स्ट इज दैट Armand tried to avoid Desiree and her baby boy. Armand started talking with Desiree with averted eye. तो सबसे पहले Armand started talking Desiree with averted eye. Exactly ये word averted जो है वो आपकी बुक में यूज किया हुआ है। When we do not take eye contact, जब हम किसी इंसान से आई कॉन्टेक्ट करके बात नहीं करते तो दैट इज कॉल्ड averted eye. तो he just neglect the Desiree and her baby. तो अब अमन ने डिजेरी को और उसके बेबी को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। एंड दूसरा अमन्स बिहेवियर, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था अमन का बिहेवियर, हिज बिहेवियर स्टार्टेड चेंजिंग अगेन। तो हमने जब शुरू में लेसन पढ़ा था तो अमन वॉज अ वेरी क्रूअल पर्सन। तो अमन जो है वो एक ऐसे पर्सन के रूप में डिस्क्राइब हुआ था जो बहुत क्रूअल था। ही जस्ट बिहेव बैडली विद हिज स्लेव्स, वो अपने स्लेव्स के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता था। बट आफ्टर हैविंग मैरिड एंड आफ्टर हैविंग दैट बेबी बॉय, शादी के बाद और उस बेटे के होने के बाद हिज बिहेवियर स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द गुड, शोइंग हिज बिहेवियर स्टार्टेड शोइंग अ गुड साइड। तो उसका बिहेवियर जो था वो चेंज होने लगा था और अच्छे करेक्टरिस्टिक वो शो करने लगा था। बट व्हेन ही कम टू नो अबाउट द कलर ऑफ बेबी, जब अमन ने धीरे धीरे उस बच्चे के कलर को रिकॉग्नाइज करना शुरू करा, देन हिज बिहेवियर स्टार्टेड चेंजिंग। ही अगेन बिकम अ क्रूअल, अ वेरी एग्जैक्टिंग ऑनर। वो दोबारा से एक क्रूअल ऑनर बन गया था। ही स्टार्टेड बिहेविंग बैडली विद हिज स्लेव्स, ही स्टार्टेड बिहेविंग बैडली विद हिज वाइफ एंड ही स्टार्टेड अवॉइडिंग हिज वाइफ एंड हिज बेबी बॉय। तो उसने बिहेव करना, वो खराब बिहेव करना शुरू किया अपने स्लेव्स के साथ। ही अगेन बिकम वेरी क्रूअल, ही अगेन बिकम वेरी एक्सैक्टिंग टुवर्ड हिज स्लेव्स। सेकेंडली ही स्टार्टेड अवॉइडिंग डिजेरी एंड हर बेबी, और उसने डिजेरी को और उसकी बेबी को अवॉइड करना शुरू किया। ही स्टार्टेड निग्लेक्टिंग देम, उन्होंने उसको निग्लेक्ट करना शुरू किया। और जितना भी टाइम था अमन जो है वो अपने घर के बाहर यूजली स्पेंड करता था। तो दिस इज द इंसिडेंस जिसे डिजेरी रियलाइज दैट थिंग्स वर चेंज, कि जो चीजें थी वो चेंज होने लगी थी। तो नाउ शी रियलाइज दैट थिंग्स वर मूविंग टुवर्ड द वर्स्ट, कि चीजें जो हैं वो और भी अब खराब होती जा रही हैं। तो वी हैव डिस्कस 5 क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Whose letter was Armand reading in the end of the story? जब ये स्टोरी एंडिंग की तरफ आती है, when Armand is just burning everything which make him realize that Desiree wants his wife, जो डिजेरी की उसको याद दिलाता था, वो सारी चीजें ही जस्ट स्टार्टेड टू बर्न देम ऑल, उन सारी चीजों को बर्न कर रहा था, अमन जो है बर्न कर रहा था। देन शी हैपेंस टू फाइंड द लेटर, देन शी हैपेंस टू फाइंड अ बंडल ऑफ लेटर। तब अमन को एक बंडल ऑफ लेटर जो है मिलता है। दीज लेटर बिलोंग्स टू डिजेरी, ये सारे लेटर्स जो थे डिजेरी के थे। बट among these letter there was a one letter which belongs to Armand's mother. इन सभी लेटर्स के बीच में एक लेटर ऐसा था जो डिजेरी का नहीं था। That letter belongs to Armand's mother which she wrote to her father, जो अमन की मदर ने अपने फादर को लिखा था। तो वो जो लास्ट लेटर था, whose letter was Armand reading in the end of the story? So at the end of the story, Armand was reading the letter of his mother. So at the end of the story, we come to know that he was reading the letter of his mother. तो वो अपनी मदर के लेटर को ही at the end of the story पढ़ रहा था। And after reading that letter, we come to know that he is also belong to the black start of the society. और इस लेटर को पढ़ने के बाद ही अमन को ये पता चलता है कि अमन was not a white, purely white. He was just because his mother was a black, his mother was a negro.
and after that he comes to know that he also belonged to the Negro strata of the society. So इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के 6 क्वेश्चन डिस्कस करे. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज लेट अस रीड बिटवीन द लाइन. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेट अस रीड बिटवीन द लाइन. अगेन हमें इनको डिस्कस करना है वन बाय वन. आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो that was the way all the Aubigny fell in love as it struck by a pistol shot. What does this tell us about the Aubigny family? पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्मंड जो है उसका नाम है और ऑबिग्नी उसका सरनेम है. जैसे हमारी सोसाइटी में होते हैं कि नाम के साथ हम सरनेम लगाते हैं, तो ऑबिग्नी जो है वो सरनेम है. अब क्वेश्चन क्या है, What was the way all the Aubigny's? तो यहाँ पर जब हम all the Aubigny वर्ड को यूज करते हैं तो this all the Aubigny refers to the family member of Armand Aubigny. तो यहाँ पर अर्मंड के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, जितने भी उसके एसेंस्टर्स थे, उनकी बात हो रही है. सो क्वेश्चन ये है कि जैसे अर्मंड, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इन शॉर्ट ये क्वेश्चन है क्या, इसको फिर मैं वर्ड बाय वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगी. ये क्वेश्चन ये है कि जैसे अर्मंड फेल इन लव विद डेज़री, इट स्पॉट पर उसको ऐसा महसूस हुआ कि ही वाज जस्ट फेल इन लव विद डेज़री, तो ऐसे ही अर्मंड के सारे फैमिली मेंबर्स के साथ होता था. एट द पॉइंट जैसे एक बंदूक से पिस्टल से शूट होता है, एट दैट मोमेंट दे फील दैट दे फेल इन लव विद समबडी. तो ऐसा अर्मंड के साथ हुआ था और ऐसा ही अर्मंड की फैमिली के सभी लोगों के साथ होता था. सो that was the way Aubigny fell in love, कि यही तरीका था जिससे Aubigny's यानी कि अर्मंड के फैमिली मेंबर जो है वो they fell in love, struck by a pistol shot. जैसे एक पिस्टल से शूट होता है within a moment, वैसे ही they fell in love. So what does this tells about the Aubigny family? So in short हम इसका आंसर देंगे, the Aubigny family fell in love with somebody in a point of moment. They fell in love with the point of moment. यानी कि वो कुछ कंसीडर नहीं करते थे, they did not consider about anything, और they were इससे कैरेक्टरिस्टिक का पता चलता है कि they were very impatient. वो बहुत हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लेते थे, और हड़बड़ाहट में या विदाउट पेशेंस जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं they were not good. तो ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इट हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट, बिकॉज जब अर्मंड ने और डिज़ेरी से शादी करी तो ही वॉज नॉट कंसिडरिंग हिज सरनेम, ही वॉज नॉट कंसिडरिंग हिज अबाउट एनीथिंग अबाउट डिज़ेरी व्हेन हिज फादर वांट टू टेल अबाउट हिम. जब डिज़ेरी के जब मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ने उसको डिज़ेरी के बारे में बताने की कोशिश की तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एनीथिंग. बट आफ्टर दैट उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए ये हमने सीखा. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि एट दैट मोमेंट Armand was quite impatient and he just fell in love with Desiree within a minute. तो इसका आंसर ये होगा. अब आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन. Why do you think Monsieur Valmont grew practical when it come to getting Desiree married? Why do you think Monsieur Valmont grew practical when it come to getting Desiree married? सेम वही क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया है. अब यहाँ पर मॉन्सियर वॉलमॉन्डे कौन है? फादर है. डिज़ेरी के फादर कौन है? मॉन्सियर वॉलमॉन्डे. प्रैक्टिकल होना, जब आप किसी चीज को लॉजिकली सोचने लग जाते हो तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल. तो मॉन्सियर वॉलमॉन्डे जब आर्मंड ने प्रपोज किया डिज़ेरी को, तब मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ये चाहते थे कि आर्मंड जो है वो डिज़ेरी के पास्ट के बारे में सारी चीजें जान ले, दैट शी वाज नॉट देयर बायोलॉजिकल बेबी, कि वो मॉन्सियर वॉलमॉन्डे की बायोलॉजिकल बेबी नहीं है. एंड दे फाउंड हर समवेयर ऑन देयर गेट, कि उन्होंने डिज़ेरी को कहीं उनके गेट के पास से उठाया था एंड शी वाज नॉट देयर बायोलॉजिकल बेबी. तो ये सारी चीजें मॉन्सियर वॉलमॉन्डे
अरमन को बताना चाहते थे, बट अरमन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट इन एनीथिंग। बट उस समय अरमन जो था वो किसी भी चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। सो वाई डू यू थिंक मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ग्रू प्रैक्टिकल? तो ये आपको क्यों लगता है कि मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ये सारी चीजें अरमन को बताना चाहते थे? वो इसीलिए बताना चाहते थे बिकॉज ही वॉन्ट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ डिज़ेरी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि डिज़ेरी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। एंड शी वॉज क्वाइट इन अ स्टेट ऑफ एंड ही वॉज क्वाइट इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन about the obscure origin of Disraeli. Obscure का मतलब होता है not clear. तो Monsieur Valmont was not clear about the origin of Disraeli. तो Disraeli किस कास्ट की है, वो ब्लैक है, वो वाइट है, he was not completely aware. There is a situation of obscureness. तो वहां पर जो सिचुएशन थी वो ऑब्सक्योरनेस की थी एंड ही वाज नॉट कंप्लीटली अवेयर अबाउट द ओरिजिन ऑफ डिज़ेरी एंड ही आल्सो वांट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ अ डॉटर। और इसके साथ वो ये भी चाहते थे कि आगे जाकर डिज़ेरी के ओरिजिन को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए he want to tell everything, he want to be practical with Armand Aubigny and he want to discuss everything with Armand Aubigny. So this is question number 2 and now come to the question number 3. How was Armand's treatment of his slaves different from that of his father? क्वेश्चन ये है कि आर्मंड का जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट का मतलब होता है बिहेवियर जो था, हियर इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज भी होता है बट यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब बिहेवियर से है। सो how was Armand's treatment of his slaves different from that of his father? अब अमन के फादर का बिहेवियर और अमन के बिहेवियर के बीच में एक कंपैरिजन है, कैसे इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट था रिगार्डिंग टू whom? रिगार्डिंग टू देयर स्लेव्स। स्लेव्स माने जो नौकर होते हैं, जो दास होते हैं, उनके लिए स्लेव्स यूज किया जाता है। स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज, जो वहाँ का कल्चर है, अगर हम थोड़ी सी यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाएं तो वहाँ पर ये था कि अफ्रीकन स्लेव्स को, द पीपल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स आर कीप एज द स्लेव्स, उन लोगों को स्लेव्स या नौकरों के रूप में वाइट पीपल जो है वो रखा करते थे। और यही चीज को हम रेशिज्म कहते हैं, इसी चीज को हम रंग भेद कहते हैं। सो क्या डिफरेंस था आर्मंड ऑबिगनी के बिहेवियर में और उसके फादर के बिहेवियर में? तो पहले हम डिस्कस करते हैं आर्मंड के फादर के बारे में। सो हिज फादर वाज क्वाइट अ काइंड हार्टेड पर्सन। तो आर्मंड के जो फादर थे वो बहुत काइंड हार्टेड फेलो थे। ही जस्ट बिहेव वेरी प्लीजेंटली, वेरी हैप्पीली विद स्लेव्स एंड स्लेव्स वर क्वाइट हैप्पी इन हिज रूल। तो आर्मंड के फादर एक बहुत काइंड हार्टेड फेलो थे, स्लेव्स वर क्वाइट हैप्पी इन हिज रूल। तो जितने भी नौकर थे उनके, जितने भी निग्रोज थे, तो इनको हम क्या कहते हैं, इन ब्लैक लोगों को बेसिकली हम निग्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी, तो अगर मैं निग्रो वर्ड यूज करूं तो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज। तो निग्रो का मतलब होता है ब्लैक पीपल। सो दीज आर द ब्लैक पीपल। और ये जो ब्लैक पीपल थे, ये आर्मंड के बिहेवियर, आर्मंड के फादर के रूल में दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, दे डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे जस्ट वर्क वेरी पीसफुली। तो आर्मंड के फादर के रूल में ये बहुत पीसफुली काम करते थे, दे रिमेन हैप्पी, वो बहुत हैप्पी रहते थे। बट जैसे ही आर्मंड का रूल आता है, आर्मंड वाज कंसीडर्ड एज अ वेरी क्रूअल हार्टेड पर्सन। आर्मंड का कैरेक्टर है कि वो बहुत क्रूअल है, बहुत इम्पेशेंट है एंड ही ट्रीटेड बैडली विद हिज स्लेव्स। वो अपने स्लेव्स के साथ जो बिहेवियर है उसका, वो बहुत क्रूअल है। ही जस्ट ट्रीट देम लाइक एनिमल्स, वो उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट करता है। तो इस तरीके से, एंड ही वाज क्वाइट exacting in his behavior, he was quite imperious in his behavior. Imperious का मतलब होता है कि वो बहुत ही arrogant है, he just want them to follow his rule. वो ये चाहता है कि वो बस उसके rules को follow करें, and he was quite exacting in his behavior. और आर्मंड जो है वो अपने behavior में बहुत exacting है। exacting का मतलब होता है कि उसे बिल्कुल perfect काम चाहिए अपने slaves के साथ। So these are the difference of ideas, these are the difference of thinking between Armand and his father.
टूवर्ड द स्लेव्स। स्लेव्स के लिए जो आर्मंड और उसके फादर के बिहेवियर में डिफरेंस है वो ये है। स्लेव्स माने मैंने आपको बताया जो नौकर होते हैं या जो दास होते हैं या उसको हम बोलते हैं निग्रो। स्लेव इज हियर यूज्ड फॉर द ब्लैक पीपल, निग्रोस। फाइन। Now come to the question number 4. Desiree looked at the baby and then at the boy, fanning him, let out a cry and let out a cry of shock. Why? आपकी लेसन के हर एक पोर्शन को ये क्वेश्चन आंसर टच करते हैं। इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन आंसर्स, आपको पूरा लेसन जो है वो समराइज हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डिजेरी लुक्ड एट द बेबी। अब ये वो सिचुएशन है व्हेन जब पहली बार डिजेरी ने व्हेन शी फर्स्टली ऑब्जर्व द बेबीज कलर, जब पहली बार डिजेरी को ये लगा था कि देयर इज समथिंग मेनेसिंग हर पीस, के कुछ ऐसा है जो उसके पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ। जब पहली बार उसको रियलाइज हुआ था, ये वो इंसिडेंस है। और वो इंसिडेंस क्या था कि एक बॉय जो था, एक निग्रो बॉय, निग्रो स्लेव बॉय was fanning his baby and Desiree was just looking at them. First she looking at her boy, baby boy, and then she looked at the negro, then she looked at the slave. So Desiree looked at the baby. एक बार Desiree जो है वो अपने बेबी को देखती थी और एक बार वो बेबी यानी कि उस स्लेव को देखती थी। वो जो बॉय जो स्लेव था, जो सर्वेंट था, वो उसको देखती थी। और उसके बाद इन दोनों को ऑब्जर्व किया उसने। एंड आफ्टर दैट शी लेट आउट अ क्राई ऑफ शॉक। और ऑब्जर्व करने के बाद शी जस्ट ब्रस्ट इनटू द क्राई ऑफ शॉक। उसके बाद उसने जो रोना स्टार्ट किया, दैट वाज क्वाइट पैथेटिक। तो ऐसा क्या हुआ था कि डिज़ी लुक एट द बेबी एंड देन लुक एट द फैनिंग, द बॉय फैनिंग हिम एंड लेट आउट अ क्राई ऑफ शॉक। तो क्यों वो जो है शॉक हो गई थी? When Desiree happened to observe the boy and his own baby boy, she was quite shocked because in that moment she realized that his baby was having a kind of color that was not whitish, and Desiree was a white baby and his baby was slightly black, and this realized the feeling of identity crisis in her. इस लेसन की तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर है आइडेंटिटी क्राइसिस। जब उसको ये लगा कि शी जस्ट नो दैट कि वो बचपन से एक वाइट स्टार्टर को बिलोंग करती है, बट सडनली उसको ये लगने लगता है, सडनली शी रियलाइजेड दैट हिज बेबी इज नॉट वाइट, ही इज स्लाइटली ब्लैक। तो ये चीज, दिस फीलिंग जनरेट द फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन हर। तो ये जो फीलिंग थी, ये उसको आइडेंटिटी क्राइसिस रियलाइज कर दी। आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस? जब आपको अपने अस्तित्व पर, आपकी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई देता है, दैट फीलिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिटी क्राइसिस। इट्स मीन दैट शी इज नॉट गोइंग टू हैव द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, शी इज नॉट गोइंग टू हैव द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट विच शी इज हैविंग। उसको, अगर वो ब्लैक है तो उसको अब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो अब तक उसका हस्बैंड या सोसाइटी उसे दे रही थी। सो दैट इज द फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस जिससे डिज़री सफर कर रही थी और इसी के कारण शी जस्ट ब्रोक इनटू टीयर्स और वो फिर उसके बाद रोने लगती है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Desiree strongly protested the accusation of not being white. अब यहाँ पर आता है, स्ट्रांगली का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बहुत जोर के साथ, प्रेशर के साथ करें। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज के खिलाफ खड़े होकर आग्रह करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट। आवाज उठाने को हम कहते हैं प्रोटेस्ट। और एक्यूजेशन का मतलब होता है ब्लेम करना, या किसी पर जब कोई आरोप लगता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूजेशन ऑफ नॉट बीइंग वाइट। हाउएवर मैडम वॉलमोडे डिडंट. She readily accepted it and asked Desiree to come back home. Why? When Desiree just come to that feeling कि जब Desiree को ये महसूस होता है या उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है that she is not white, और ये इल्ज़ाम कौन लगाता है? उसका हस्बैंड आर्मंड और बिगनी।
जब अर्मन ओबिगनी डिजेरी को ये कहता है कि दैट शी इज नॉट प्योर वाइट, कि वो प्योरली वाइट नहीं है बिकॉज द बेबी वाज नॉट वाइट, तो हो सकता है डिजेरी के मदर या फादर में से एक ब्लैक होगा, तो डिजेरी भी उस रीजन से ब्लैक हुई और इसी कारण से जो बेबी का कलर है वो वाइट नहीं है, दैट इज ब्लैक। तो डिजेरी पर ये ब्लेम लगाया जाता है कि वो वाइट नहीं है, वो श्वेत नहीं है। एंड हाउएवर मैडम वॉलमोंडे डिडंट, बट डिजेरी को ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी, वो इस चीज को प्रोटेस्ट कर रही थी, वो इस चीज के खिलाफ थी। एंड देन शी राइट अ लेटर टू हर मदर, उसके बाद वो एक लेटर लिखती है अपनी मदर को, शायद उसकी मदर उसको सपोर्ट करेंगे इस चीज को लेकर। बट डिजेरी की जो मदर है यानी कि मिसेस वॉलमोंडे जो है, शी डिडंट प्रोटेस्ट एनीथिंग, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करती है और वो डिजेरी को एक लेटर लिखती है, जस्ट कम बैक होम विद योर बेबी, कि अपनी बेबी को लेकर जो है वापस घर आ जाओ। और वो बहुत रेडिली, बहुत तत्परता से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उनको मालूम है कि डिजेरी कुड बी अ ब्लैक, कि डिजेरी जो है वो एक ब्लैक हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? क्योंकि वो उनकी बायोलॉजिकल बेबी तो थी नहीं। दे फाउंड हर समवेयर फ्रॉम देयर गेट, कि उनके घर के गेट के पास उन्होंने कहीं से डिजेरी को फाइंड आउट किया था। एंड she asked डिजेरी to come back and this is the only reason कि उन्होंने डिजेरी को वापस आने के लिए, उनके घर पर वापस आने के लिए कह दिया था, because she was aware of the fact that डिजेरी can be a black, कि डिजेरी जो है वो हो सकती है, एक ब्लैक हो सकती है, and that is why her child is also black, and she comes to know about the fact that डिजेरी can be a black because she was not their biological baby and they find डिजेरी somewhere from their gate. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. Now come to the question number 6. Why did Amun think that Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him? Why did Amun think that Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जब when डिजेरी happened to realize that कि she was not a white woman, कि डिजेरी प्योर वाइट नहीं है, और ये फैक्ट जो है अमन को भी पता चलता है, तो अमन वाज फीलिंग लाइक कि गॉड ने उसके साथ एक क्रूअल्टी की है, गॉड ने उसके साथ एक अत्याचार किया है। ऑलमाइटी जो है वो यूज हुआ है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। तो ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। तो ऑलमाइटी गॉड हैड डेल्ट क्रूअली एंड अनजस्टली। क्रूअली का मतलब होता है क्रूरता, और अनजस्टली का मतलब होता है, जस्टली का मतलब होता है न्याय, और अनजस्टली का मतलब होता है अन्याय करना। तो क्यों ऐसा लगता है अर्मन को कि भगवान ने अर्मन के साथ एक क्रूअल बिहेवियर किया है और अन्याय किया है कि जब उसकी मैरिज जो है वो किससे हुई है? डिजेरी से हुई है। तो क्या आप अर्मन की इस बात से अग्री हो? नो, we are not agree with Arman that आप क्यों अग्री नहीं हो? बिकॉज कलर बेसिस पर आप किसी को जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और Arman itself was responsible for lots and lots of wrong deeds. डिजेरी के साथ मैरिज करने के बाद अर्मन ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे जो बहुत सारे ऐसे गलत काम किए जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल था। सो वी आर नॉट अग्री दैट Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him. Now come to the question number 7. Why do you think Arman's mother never left her own country? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अर्मन की जो मदर है उन्होंने अपनी कंट्री को कभी लेफ्ट नहीं किया? तो वो फ्रांस को बिलोंग करती थी, तो अर्मन की मदर जो थी वो फ्रांस को बिलोंग करती थी, एंड शी नेवर लेफ्ट आउट हर कंट्री। तो उनकी डेथ भी फ्रांस में ही हो गई थी, एंड आफ्टर दैट अर्मन एंड हिज फादर शिफ्टेड टू लॉएब्री, और उनकी डेथ के बाद ही अर्मन और उसके फादर जो है वो शिफ्ट हुए थे लॉएब्री में। तो क्यों ऐसा लगता, क्यों उन्होंने ऐसा किया? बिकॉज शी लव हर कंट्री वेरी मच। जो अर्मन की मदर थी, शी लव हर कंट्री वेरी मच, that is why she denied to shift from France to Loebre.
और यही कारण था कि उन्होंने फ्रांस से लॉएब्री शिफ्ट होने के लिए डिनायल कर दिया था, मना कर दिया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Did Armand really want Desiree to leave? Support your answer with the evidence from the story. क्वेश्चन का मतलब ये है कि when Armand come to know that Desiree was not purely white, जब Armand को ये पता चला कि Desiree जो है वो श्वेत नहीं है, white नहीं है, क्या वो सचमुच चाहता था कि Desiree वहां से चली जाए? Support your answer with the evidence. Evidence का मतलब होता है proof. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। तो आपको अपने आंसर को प्रूफ करना है। तो इसका आंसर होगा यस, आर्मंड रियली वांट डिज़ेरी टू लीव। आर्मंड सचमुच चाहता था कि डिज़ेरी वहां से चली जाए, बिकॉज आर्मंड हैड डिज़ेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ग्रेस, डिज़ेरी एंड हर बेबी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ग्रेस they bring toward his family, क्योंकि आर्मंड को कहीं ना कहीं ये लगता था कि डिज़ेरी और उसका बेबी जो है वो उनकी फैमिली के लिए डिसग्रेस, अपमान जो है वो लाएंगे, बिकॉज दे वर ब्लैक एंड ब्लैक्स वर कंसीडर्ड इंफीरियर, क्योंकि वो दोनों ब्लैक थे और उस समय की सोसाइटी ये मानती थी कि ब्लैक जो है वो इंफीरियर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लैक्स वर रिगार्डिंग एज इंफीरियर एंड व्हाइट वर रिगार्डिंग एज सुपीरियर। तो आर्मंड को ये लगता था कि एक नीचे स्टार्टा की लेडी या उसका बच्चा जो है वो हमेशा उसकी फैमिली की तरफ क्या लाएंगे? डिसग्रेस लाएंगे। सो दैट इज द रीजन। और आप एविडेंस क्या दोगे? ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड ही डिडंट ट्राई टू स्टॉप डिज़ेरी। एक तो वो बहुत खुश था और उसने डिज़ेरी को रोकने की कोशिश नहीं की व्हेन शी वाज लिविंग द हाउस, जब वो अपने घर को छोड़ रही थी। और थर्डली आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, शी स्टार्टेड बर्निंग एवरीथिंग दैट रिलेटेड टू डिज़ेरी। और उसके बाद उसने उन सारी चीजों को बर्न करना, एक फायर वुड जो है वो उसने जलाई, एक फायर वुड जलाकर ही स्टार्टेड बर्निंग एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू डिज़ेरी। उसने डिज़ेरी के सिल्क गाउन, उसके ग्लव्स, उसके लेटर्स, ही जस्ट बर्न देम ऑल। उसने डिज़ेरी से जुड़ी हुई हर एक मेमोरी को, ही जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय द ईच एंड एवरी मेमोरी that remind him about डिज़ेरी। तो वो डिज़ेरी के निशान को, नामो निशान को मिटा देना चाहता था। and this is the biggest evidence from the story that he didn't want डिज़ेरी to be live with him. so ये थे आपके सारे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है आपका let us go beyond the story. when we are discuss this section, जब हम ये सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि दिस सेक्शन इज गोइंग टू रिलेट विद योर ओन पर्सपेक्टिव। यहाँ हमें लेसन की बात करनी है, इसके साथ साथ आपकी अपनी सोच की बात करनी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू द राइटर है, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हैविंग अबाउट दैट स्टोरी, अबाउट दैट प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज heartbroken. Let's read the first question. Heartbroken at Armand's reaction, डिज़ेरी walks away with her child toward the bayou. अब बेयू क्या है? एक झील या नदी का नाम है बेयू. So there is no need to get confused about bayou. What do you think happened to them after that? Heartbroken at Armand's reaction. जब डिज़ेरी happens to know about her origin, जब डिज़ेरी को अपने origin के बारे में पता चलता है, and then she told everything about Armand, और फिर वो Armand को सारी बातें बताती है, तो Armand का जो रिएक्शन होता है वो बहुत हार्ट ब्रोकन होता है। हार्ट ब्रोकन का मतलब है उसका मन जो है वो बिल्कुल टूट जाता है और Armand के रिएक्शन को देखकर, क्योंकि Armand का रिएक्शन जो होता है वो बहुत ड्राई होता है, बहुत रूड होता है टुवर्ड डिज़ेरी। सो डिज़ेरी वॉक्स अवे। तो आफ्टर दैट शी डिसाइडेड टू just left the house of Armand। और इसके बाद जब डिज़ेरी को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा, कोई लव ही नहीं मिल रहा, then she decided to just left the house। तो वो ये डिसाइड करती है कि that she would left the house of her husband, कि वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़ देगी। and she take her baby toward the bayou, और वो अपनी बेबी को उठाती है, and in her gown she was wearing
नो स्लीपर्स इन हर फूट, और वो अपने नाइट गाउन में होती है, शी वॉज नॉट वेयरिंग स्लीपर्स, शी जस्ट टेक हर बेबी टुवर्ड द बेयू, वो अपने बेबी को उठाकर उस बेयू या उस नदी की या झील के किनारे किनारे चलना शुरू करती है. What do you think happened to them after that? तो आप क्या सोचते हो कि उस दोनों मदर और उस बेबी के साथ क्या हुआ होगा? सो राइटर ने कुछ clearly explain. The writer has not clearly explained anything about what happened to Desiree and her baby. राइटर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि एक्चुअली में डिजेरी और उसकी बेबी के साथ क्या हुआ होगा, बट शी वॉज क्वाइट हार्ट ब्रोकन एट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिजेरी वॉज क्वाइट हार्ट ब्रोकन एट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड Armand Aubigny. She just felt like she has lost her identity. उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं खो गई है. She was not receiving any love, any affection from his husband, from her husband. उस समय वो अपने हस्बैंड से कोई लव, कोई अफेक्शन जो है या कोई रिस्पेक्ट, she was not receiving respect from his husband. The most important thing is that her identity was lost completely and she was not receiving any respect from her husband, and that was quite heartbroken for Desiree. और ये Desiree के लिए बहुत heartbroken situation थी. And that she keep her baby, then she take her baby and she left the house of Armand Aubigny. और अपनी बेबी को वो उठाती है और उसके बाद वो Armand Aubigny का घर छोड़ देती है. And she left toward the बेयू, और उसके बाद वो बेयू की तरफ चलना शुरू करती है. आफ्टर दैट वी थिंक दैट, उसके बाद आप अपनी सोच, अपने आइडिया दोगे. आफ्टर दैट वी थिंक दैट शी माइट लॉस्ट हर लाइफ विद हर बेबी. तो शायद जो है आफ्टर दैट शी माइट हैव कॉमिटेड सुसाइड, कि शायद उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया होगा. एंड शी माइट हैव डिस्ट्रॉयड हर लाइफ विद हर बेबी. तो शायद उसने अपनी बेबी के साथ अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा. तो दिस लेसन इज डील विद द आइडेंटिटी क्राइसिस, विद द फेमिनिज्म, विद द रेशिज्म. इट्स क्वाइट अ डीप स्टोरी. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू यू थिंक Armand felt after reading the letter from her mother? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि Armand happened to find a letter from the box which is related to her mother. तो Armand को एक लेटर मिलता है जो उसके मदर का है, उस बॉक्स में से जिसमें डिजेरी का सामान था. एंड दैट लेटर वाज रिटन बाय हर मदर टू हिज फादर. और ये लेटर जो था ये Armand की मदर ने उसके फादर को लिखा था. तो इस लेटर को पढ़ने के बाद हाउ डू यू थिंक Armand फेल्ट आफ्टर रीडिंग दैट? आपको क्या लगता है कि Armand को कैसा फील हुआ होगा? तो Armand को कैसा फील हुआ होगा ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस लेटर में फैक्ट क्या था. एक्चुअली क्या था उस लेटर में फैक्ट, जिसे जानकर Armand जो है वो डिस्टर्ब हुआ या हैप्पी हुआ या क्या हुआ. सो when Armand happened to read the letter of his mother, he come to know that his mother was also a Negro. His mother were also a black woman and she wrote that letter to her husband. और उनमें उन्होंने क्या लिखा था? That she was feeling thankful toward her husband. और इस लेटर में वो अपने हस्बैंड के प्रति थैंकफुल फील कर रही हैं कि Armand was not able to recognize, he was not able to come to know about his real identity. कि उस लेटर में उन्होंने यही चीज मेंशन की थी कि शायद Armand को जो है कभी भी अपने ओरिजिन के बारे में, कि वो खुद भी एक ब्लैक मदर का बेटा है, ये कभी नहीं पता चलेगा. एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी फॉर दैट. और इस चीज के लिए Armand की मदर जो है वो बहुत हैप्पी थी. when Armand come to know about that fact, he was कैसा फील हुआ होगा Armand को? So he feel ashamed of himself. तो शायद उसको अपने ऊपर शर्म आई होगी, शायद he feel too ashamed of his identity and he feel also responsible for the death of his wife
and his newborn baby. और शायद फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसको अपनी मिस्टेक जो है वो रियलाइज हुई होगी और उसने ये सोचा होगा दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज न्यूबॉर्न बेबी एंड फॉर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ऑल्सो. सो ऐसा उसको फील हुआ होगा आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ हिज मदर who was also a निग्रो. तो अर्मंड जो है, फैक्ट ये आता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि निग्रो जो अर्मंड है वो खुद भी एक निग्रो है और जिस चीज से वो बहुत हेट करता है, he just hate Negroes. और at the end of the story he comes to know that he himself is a Negro. Now come to the question number 3. At the end of the story, do you think Armand would still be of the opinion that Almighty God had dealt cruelly, unjustly with him? Why or why not? Question क्या है? At the end of the story, do you think Armand would still जैसे जैसे हम स्टोरी के एंड पर आ जाते हैं, और स्टोरी का एंड क्या है? When Armand happened to read the letter of his mother, जब अमन ने अपनी मदर के लेटर को पढ़ा, that was the end of the story. और जब उसने वो लेटर पढ़ा तो क्या उसको लगा होगा कि जो उसने एक कोटेशन बोली थी, एक उसने वाक्य बोला था कि Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him, क्या वो अभी भी इस चीज को मानता है? तो शायद उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन का मतलब होता है उसका थॉट. तो क्या आर्मंड का थॉट जो है वो चेंज हो गया होगा उस टाइम? यस, हिज थॉट विल डेफिनेटली चेंज एट दैट मोमेंट. उसका थॉट जो है वो डेफिनेटली चेंज हो गया होगा एट दैट मोमेंट, बिकॉज Armand come to know about his origin. At that moment he comes to know about his identity and he was just feel ashamed that he had done lots and lots of wrong deed with his wife, with slaves, and slaves जिनको वो hate करता था for being black. So that is why he definitely feel ashamed of being what he did with the other people who thought they were black. And जो ये quotation थी कि God Almighty had dealt cruelly and unjustly with him, he was not completely satisfied or agree with them. So this is all we have for the exercise for the children of 8th class, and we have discussed lots of questions there. I hope आप सबको ये concept clear हुआ होगा. Till then, have a nice day and keep learning, keep smiling.